احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، بہت احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، احسان شناسی علی و فاطمہ، سیرت علی و فاطمہ ہے، اور احسان فراموشی سنت ابو سفیان ہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ آج عزیزان محترم، آج دن میں علمی جہاں پہ علی والے بیٹھتے ہیں وہاں پر علی کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اب چاہے یہ علی کا ذکر جو ہے کسی مجلس سے، محفل سے ریلیشن نہیں رکھتا، اس کا کانٹیکٹ نہیں ہے، جہاں بھی علی والے بیٹھتے ہیں تذکرہ علی کا ہوتا ہے۔ آج دن میں بھی علی کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور معلوم یہ ہوا، بتایا یہ گیا، مجھے پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے درمیان ہیں جو مس گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن ہمیں اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ جب تک ہمارے درمیان یہ منبر موجود ہے ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی مس گائیڈ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا۔ جب تک کہ یہ منبر ہمارے درمیان ہے ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ عزیزان محترم، ریزن یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس منبر سے حق بیانی کی جاتی ہے۔ اس منبر سے دنیا میں آپ دیکھیں لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، بہکاتے رہتے ہیں، لیکن صراط مستقیم کا پتہ دینے والے ان مجلسوں میں ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں گناہوں کی محفلیں سجانے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، گناہوں کی طرف انوائٹ کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن گناہگار کو حر بنانے والے ان مجلسوں میں ملیں گے۔ بے شک بھائی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، برائیاں پھیلانے والے، جہالت پھیلانے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن صراط مستقیم کا پتہ دینے والے ان مجلسوں میں ملیں گے۔ جہالت کو عام کرنے والے عزیزان محترم بہت مل جائیں گے، لیکن علم و اخلاق و معرفت و مومنیت کا پیغام دینے والے ان مجلسوں میں ملیں گے۔ آپ کی ویلیو، پوزیشن، امیج کو ڈاؤن کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن عزیزان محترم بیزر کو ابوذر بنانے والے ان مجلسوں میں ملیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، مرحومہ کی مجلس ہے، ایک مومنہ کی مجلس ہے، تو ہم نے موضوع بھی اسی عنوان سے انتخاب کیا کہ آج کی 30 منٹ کی مجلس کا موضوع یہ ہے کہ مومن کیا ہے اور حق کیا ہے۔ دیکھیے، مومن اور حق میں جدائی نہیں ہے۔ جس طرح سے میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ عالم علم سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے حق بھی مومن سے جدا نہیں ہے۔ جہاں جہاں مومن ہے وہاں وہاں حق ہے، جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں مومن ہے۔ میں مثال دے دوں، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، جب مومن کی یہ مثال ہے کہ مومن حق کے ساتھ ہے، جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں مومن ہے، تو امیر المومنین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ شاید اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت مع الحق، تم علی کے ساتھ، تم حق کے ساتھ ہو اور حق تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حق مومن سے جدا نہیں ہے، حق جہاں کہیں بھی ہے مومن کے ساتھ ہے، جس جگہ بھی ہے مومن کے ساتھ ہے۔ حق اور مومن میں جدائی نہیں ہے، حق اور مومن آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، ان میں جدائی نہیں ہے عزیزان محترم۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کچھ لینا ہوتا ہے، جب کسی کو کچھ بھی کہیں سے لینا ہوتا ہے تو حق کی دہائی دیتا ہے کہ میرے باپ کا حق ہے مجھے ملنا چاہیے، میری ماں کا حق ہے مجھے ملنا چاہیے، یہ میرا حق ہے،
مجھے ملنا چاہیے، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو حق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، جب تک حق سے لینا ہوتا ہے حق کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو حق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں مثال دے دوں کہ جب چار پانچ چور کہیں چوری کرتے ہیں، کہیں کسی کے گھر میں، کسی بینک میں، کہیں دکان میں، کہیں بھی چوری کرتے ہیں، چار پانچ جب چوری کر لیتے ہیں، وہ لٹا ہوا چوری کا مال جب چوری کر کے گھر پہ لے کے آتے ہیں اپنے، یا جہاں جس جگہ ہیں وہاں لے کے جاتے ہیں، جب تقسیم بندی ہوتی ہے تو ہر چور کہتا ہے کہ سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے، سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے۔ چور ہیں، چوری کر کے آئے ہیں، ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا حق چوری کر کے لائے، یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا حق چوری کر کے لائے ہیں۔ عزیزان محترم، حق مومن سے جدا نہیں ہے۔ حق اور مومن ہمیشہ سے حق کے طرفدار ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ ہر دور میں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، ہر دور میں رہا، روزے ازل سے ہے۔ عزیزان محترم، ابتدا سے ہے، زندگی کی ابتدا سے ہے، حق اور باطل آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں، آپس میں ان کا چلتی رہتی ہے۔ عزیزان محترم، لیکن حق باطل جب حق کے مقابلے میں آتا ہے عزیزان محترم، تو وہ باطل کی فکر یہ ہوتی ہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، لشکر ہمارے پاس ہے، ہم حق کو پست کر دیں گے، حق کو پر ہم غالب آ جائیں گے۔ لیکن حق کے پاس بس دو طاقت ہوتی ہے۔ پہلی طاقت تو یہ ہوتی ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ حق کے ساتھ ہے، اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ وہ پوری حقیقت سے کھڑا ہوتا ہے، وہ پوری حقیقت سے کھڑا ہوتا ہے۔ حق عزیزان محترم باطل کے مقابلے میں پوری حقیقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جب حق باطل پر غالب ہو جاتا ہے تو اب جب باطل یہ دیکھتا ہے کہ حق غالب ہو رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، حق پر الزام لگاتا ہے۔ اور اس میں سے ایک الزام عزیزان محترم یہ ہے کہ لوگوں نے پھیلایا یہ ہوا ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، من بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے عزیزان محترم۔ آپ دیکھیں، صلوات پڑھیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ الزام یہ ہے، حق پر الزام یہ ہے، وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ باطل ہمارے پر حاوی ہو رہا ہے تو الزام لگانے لگتا ہے۔ تو اس کا ایک الزام میں سے ایک الزام یہ ہے کہ آپ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ فارسی میں بھی ہے کہ حق ترقص، عربی میں بھی ہے الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے۔ انگلش میں بھی ہے کہ ٹروتھ از بٹر، انگلش یعنی حق کڑوا ہے۔ عزیزان محترم، حق کڑوا نہیں ہے، حق بہت ہی میٹھی چیز کا نام ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ حق کڑوا کس کے لیے ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، سب بیمار ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کو اچھے سے اچھا کھانا دیا جائے، اچھے سے اچھا پانی دیا جائے، اچھے سے اچھا پھل دیا جائے، تو یہ کہتا نظر آتا ہے، بیمار کہتا نظر آتا ہے کہ مجھے کڑوا لگ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بیمار کو اچھی غذا دی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ کڑوا لگتا ہے۔ سیم اسی طرح ہے، اسی طرح جب باطل کو حق کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کڑوا ہے۔ جناب محترم، حق کڑوا نہیں ہے، آپ کا مزاج خراب ہے تو حق کڑوا لگ رہا ہے۔ طبیعت خراب ہے اس لیے حق کڑوا لگ رہا ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس لیے حق
حق کڑوا نہیں ہے, حق شہد سے زیادہ شیریں ہے. حق کڑوا نہیں ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حق شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور عزیزان محترم, جس طرح سے مومن اور حق جدا نہیں ہو سکتے, تو مومن کیا ہے؟ امین المومنین کو آپ دیکھیں کہ لوگوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا, اسی طرح لوگ بھی حق کو موقع پر موقع تنہا چھوڑ دیتے ہیں. جب تک حق سے ملتا رہتا ہے حق کے ساتھ نظر آتے ہیں, لیکن جب حق کو دینے کی باری آتی ہے تو حق سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں. پیغمبر کے زمانے میں بھی یہی ہوا کہ جب تک حق سے لوگوں کو ملتا رہا, مال غنیمت ملتا رہا, حق کے ساتھ نظر آئے, پیغمبر کے زانو پر زانو نظر آئے, لیکن جب حق خطرے میں پڑ گیا, حق مصیبتوں میں گر گیا, تو حق کو تنہا چھوڑ دیا. یہ روزے ازل سے ہے عزیزان محترم. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد. کڑوا نہیں ہے حق. اور عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں, حق اور مومن کمزور نہیں ہیں. پوری دنیا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے, وہ کمزور نہیں ہو سکتے. میں مثال دے دوں کہ اگر یہ انگوٹھی ہے, اسے میں کہوں کہ یہ کاغذ ہے, قلم ہے, پین ہے, بک ہے, تو یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ انگوٹھی ہے. حق یہ ہے کہ یہ انگوٹھی ہے. اچھا, باطل کیسے وجود میں آتا ہے؟ باطل جھوٹ سے وجود میں آتا ہے. اندھیرا کیسے وجود میں آتا ہے؟ میں مثال دے دوں, اندھیرا کیسے وجود میں آتا ہے؟ اندھیرا وجود میں کب آتا ہے کہ یعنی کوئی ہے جو چراغ پر پردہ ڈال رہا ہے. چراغ پر جو پردہ ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا نظر آتا ہے, روشنی چھپ جاتی ہے. عزیزان محترم, حق اور حق کے طرفدار ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ سے حق کے طرفدار رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. مومن ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. حق کے طرفدار ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. اور حق کے طرفدار مومن, آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں, کتنے انسان ہیں, لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ مومن کی تعداد کتنی ہے؟ بہت کم, بہت کم ہے. اسی طرح سے حق کے طرفدار بھی کم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قیمتی چیز ہمیشہ کم ہوا کرتی ہے. قیمتی چیز ہمیشہ کم ہوا کرتی ہے, اس لیے حق کے طرفدار ہمیشہ سے کم. اور یہ کمزور نہیں ہے, حق بہت پاورفل چیز کا نام ہے. مومن بہت مومن ہے. عزیزان محترم, آپ یہ نہ دیکھیں کہ مومن ہمارے یہاں یہ ہے کہ مومن ہے بہت سیدھا ہے. عزیزان محترم, مومن کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. علامہ اقبال کا شاعر موجود ہیں, بہتر جانتے ہیں, ان کو پتہ نہیں کتنے شعر یاد ہیں. عزیزان محترم, علامہ اقبال کا شعر آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. علامہ اقبال کو تو آپ جانتے ہیں, سارے لوگ جانتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اگر کسی کے اوپر نگاہ رحم کر دے, سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی, محبت کی نگاہ سے بس دیکھ دے, تو تقدیر بدل جاتی ہے. مومن کی پاور دیکھیں آپ, مومن کا مرتبہ دیکھیں, مومن کا مقام دیکھیں کہ مومن کس کہتے کسے ہیں, مومن کا مرتبہ کیا ہے, معیار کیا ہے, مقام کیا ہے. مومن اگر محبت سے کسی پر نگاہ رحم کر دے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. ارے جب مومن کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے تو عباس کی نگاہ میں کتنی طاقت ہوگی. ہزاروں کے لشکر کو روک رکھا ہے. سبحان اللہ بھائی, واہ 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 واہ. جب مومن کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے تو عباس کی نگاہ میں کتنی طاقت ہے ہوگی کہ ہزاروں کا لشکر نگاہوں سے روک رکھا ہے. مومن کے پاس ہی جان محترم بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت کا نام, بہت تمام کمالات کا مرکز اگر کوئی ہے تو مومن ہے.
तो जब मोमिन ऐसा है तो अमीरुल मोमिनीन कैसा होगा? सुभान अल्लाह भाई, सुभान जब अल्लाह। मोमिन में इतनी ताकत है तो इसके मौला में कितनी ताकत होगी? सलावत पढ़े मोहम्मद अमीरुल मोमिनीन में कितनी ताकत होगी? अईज़ान मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन, मोमिन की ताकत देखें आप, मोमिन की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि कुरान की जिस आयत की मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया तो इसमें क्या है? इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, बेशक मोमिनीन वो लोग हैं, कौन लोग हैं? इज़ा ज़िक्रुल्लाह, कि जब वो जिक्र खुदा करते हैं तो फिर क्या होता है? वज़िलत क़ुलूबहुम, क्या होता है? उनके दिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। जब मोमिन कुरान की तिलावत करता है तो उसके दिल खिल जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, मोमिन जब कुरान की तिलावत करता है तो उसके दिल खिल जाते हैं। मुझे ये फलसफा समझ में नहीं आया, लेकिन जब जिक्र अमीरुल मोमिनीन हुआ तो मोमिन के चेहरे खिल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ दिल खिले, यहाँ चेहरे खिल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वजिलत कुलूबहुम, फिर क्या है? वतुलअत अलैहिम आयातुहु, कि और जब वो कुरान की आयत की तिलावत करता है तो वज़ादतहुम ईमाना, उसके ईमान में इजाफा होता चला जाता है, इजाफा ही होता चला जाता है। और फिर क्या आगे की आयत का हिस्सा क्या है? आगे की आयत का हिस्सा ये है कि मोमिन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन किसी ऐसे वैसे में भरोसा नहीं करता, मोमिन अल्लाह पे भरोसा करता है। ये मोमिन की जात है, मोमिन अल्लाह पे भरोसा करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें कि तमाम इबादत मस्जिदें, तमाम महराबें, तमाम अज़ा खाने अज़ीज़ान मोहतरम लायक एहतराम हैं, सब के सब एहतराम की जगह हैं, लेकिन अल्लाह अमीरुल मोमिनीन का खुदा इसमें रहता नहीं है, इसमें रहता नहीं, मस्जिद में नहीं रहता, ऐसा खाने में नहीं रहता। कहाँ रहता है? पैगंबर ने क्या फरमाया? पैगंबर ने फरमाया कल्बुन मोमिन अर्शुर रहमान, मोमिन का दिल अल्लाह का घर है, मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। जब मोमिन का दिल अल्लाह का घर है तो जब घर है तो घर वाले भी होना चाहिए, जब घर है तो घर वाले भी होना चाहिए। पैगंबर से पूछा गया आपके घर वाले कौन हैं? तो कहा अली व फातिमा, हसन व हुसैन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अमीरुल मोमिनीन अज़ीज़ान मोहतरम, पैगंबर ने क्या फरमाया? या अली अंता बेमंजिलतिल काबा, जिस तरह से फरमाया या अली अंता बेमंजिलतिल हारून मिन मूसा, सेम उसी तरह दूसरी हदीस में फरमाया या अली अंता बेमंजिलतिल काबा, ऐ अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है, काबे जैसी है। आप देख चले जाएं, पूरे मुसलमान में 72 फिरके हैं, सब के सब खाने काबा की तरफ सजदा करते हैं, सब के सब। अब नमाज में कोई भी फिरका आप उससे कह दें कि अगर नमाज की हालत में अगर इधर उधर निगाह हो गई तो फिर क्या है, अहकाम क्या है? तो वो कहेगा, किसी भी मजहब फिरके का हो, कहेगा कि नमाज बातिल है, नमाज बातिल हो गई। पैगंबर क्या कह रहे हैं? या अली अंता बेमंजिलतिल काबा, ऐ अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है, काबे जैसी है। ऐ अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है, यानी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और उसका रुख इधर उधर हुआ तो नमाज नमाज न रहेगी। ईमान भी इसी तरह से है, मोमिन का ईमान भी इसी तरह से है कि अगर अली के सिलसिले में इधर उधर ईमान हुआ, इधर ईमान हुआ, इधर उधर से मतलब समझे आप? सलवात पढ़े मोहम्मद। नारे
सलवात सुभान अल्लाह व जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हारी सुभान मिसाल अल्लाह काबे जैसी है या अली वाह। अंता बिमंजिलतिल काबा। ऐ अली तुम्हारी मिसाल काबे जैसी है, जर्रा बराबर भी अगर किसी का भी ईमान अली से इधर उधर हुआ ईमान ईमान न रहेगा। ऐज़ान मोहतरम अमीरुल मोमिनीन की शान में न जाने कितने पैगंबर ने कसीदे बयान किए। कभी कहा या अली अंता मिन्नी, ऐ अली तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूँ। कभी कहा या अली लहमो का लहमी, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, वदम का दमी, ऐ अली तुम्हारा खून मेरा खून है। पैगंबर ने हजार न जाने कितने कसीदे बयान कर दिए। या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना, ऐ अली तुम ही जन्नतो दोज़ख के बांटने वाले हो। या अली लहमो का लहमी, दमो का दमी, हुब्बे का हुब्बी, बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी, बुग़्ज़ का बुग़्ज़ी, न जाने कितनी हदीसें पैगंबर ने बयान कर दी। कहा ए अली तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म। ए अली तुमको मुझसे वही निस्बत होती है। जब पैगंबर कसीदे बयान कर रहे थे तो आवाज़े मशीयत आई, पैगंबर ठहर जाओ, तुम कह रहे हो कि अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है, तो अब तुम ठहरो, अब मुझे भी कुछ कहने दो। अब अल्लाह ने कहा ऐ पैगंबर तुमने कहा कि अली का खून मेरा खून है, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली तुम्हारे जैसा है, तुम अली जैसे हो, तो अब रुको, अब मुझे भी कुछ कहने दो। या अली तुम्हारी आंख मेरी आंख, अली की आंख ऐनुल्लाह, अली का दिल कल्बुल्लाह, अली का चेहरा वजुल्लाह, अली का हाथ यदुल्लाह, अली की ज़बान लिसानुल्लाह, अली का दोस्त रज़ी अल्लाह, अली का दुश्मन लानतुल्लाह। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। ऐज़ान मोहतरम फरमाते हैं, अयतुल्लाह रूमी फरमाते हैं कि मैं नहीं मानता कि कोई आदम जमीन पर आया था, मैं नहीं मानता कि कोई ईसा आया था, मूसा आया था, याकूब आया था, यूशा आया था, ईसा आया था, यूसुफ आया था, याकूब आया था, मैं नहीं मानता। उनका अकीदा बयान कर रहा हूँ। वो कहते हैं ये एक अली था जो कभी आदम बनकर आया, कभी ईसा बनकर आया, कभी मूसा बनकर आया, कभी याकूब बनकर आया, कभी यूसुफ बनकर आया। अज़ीज़ान मोहतरम अब मालूम हुआ, पता ये चला, मालूम ये चला कि शैतान सिर्फ एक आदम के सजदा ना करने पर शैतान नहीं बना। मालूम ये हुआ कि इसने एक दौर के अली का इनकार किया तो शैतान बन गया। सुभान अल्लाह भाई वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली की उम्र 4 साल है। बच्चे शौकत भाई के छोटे छोटे बच्चे जैसे इधर उधर दौड़ते रहते हैं वैसे अली की उम्र है। अली छोटे से हैं 3-4 साल की एज है अली की। दौड़ आए हैं। अब आपने शायद इस घर में, आप तो माशाल्लाह यहीं के हैं, मैं बचपन में था तो यहाँ पे मतलब सहन था और सहन में चारों तरफ चारपाइयाँ बिछी होती थी और बीच में हम लोग दौड़ा करते थे, खेला करते थे, हमारे सारे लोग बैठे होते थे। तो इसी तरह उस ज़माने में भी अली के घर में सहन में ख़ानदान बनी हाशिम की औरतें बैठी थीं। अली दौड़ कर उधर जा रहे हैं, दौड़ कर इधर। बच्चों की सिफात में से है कि बच्चे दौड़ते हैं, खेलते हैं तो दौड़ते हैं, कभी दौड़ के इधर जा रहे हैं, कभी दौड़ कर उधर आ रहे हैं। फातिमा बिनते असद की निगाह पड़ी, कहा ए अली गिर जाओगे, संभल कर। अली ने नजरअंदाज कर दिया। फिर एक मर्तबा फातिमा ने कहती हैं, फातिमा बिनते असद कहती हैं, अली गिर जाओगे, संभल कर। अली पलट के कहते, अम्मा बुजुर्गों से ऐसे बात नहीं किया करते। बुजुर्गों से ऐसे बात नहीं किया करते। अब तमाम खानदान बनी हाशिम की औरतें जो बैठी थी
वो मुस्कुराने लगी। कहा कि ऐ फातिमा पूछो अली कैसी बुजुर्गी की बातें कर रहे हैं, कैसी बुजुर्गी की बातें कर रहे हैं। तो फातिमा बिन्त असद कहती हैं अली आने दो तुम्हारे बाबा अबू तालिब को, तुम्हारी शिकायत करती हूँ, तुम माँ से बुजुर्ग हो। कहा अम्मा बाबा से कहने का क्या मतलब, मैं तो उनका भी बुजुर्ग हूँ। अब जो खानदाने बनी हाशिम की औरतें बैठी थी वो खड़ी हो गई, हैरत ज़दा हुई। कहा ए फातिमा जरा पूछो अली कैसी बुजुर्गी की बातें कर रहे हैं। अब अली से फातिमा ने पूछा अली कैसी बुजुर्गी, तो अली ने कहा ए अम्मा याद करो कि जब आपकी शादी मेरे बाबा से नहीं हुई थी, उनका ख्वाबो ख्याल भी आपके ज़हन में नहीं था। आप फला दोस्तों के साथ, फला सहेलियों के साथ किसी मकाम पर, किसी सहरा में घूमने गई थी। अब वहां पर एक शेर ने आप पर हमला किया। तो फातिमा कहती हैं कि ऐ अली शादी के पहले की बात तुम्हें किसने बताई? मैंने ये बात तो किसी से नहीं बताई, किसी से शेयर नहीं की, ये तुम्हें किसने बताई? अली ने कहा अम्मा आप ये बताइए कि जब शेर ने हमला किया तो आपकी सहेलियों ने जो गैर बरी हाशिम थी वो भाग खड़ी हुई, आप जो कि खानदान बनी हाशिम से थी वही डटी रही। कहा हाँ हकीकत है। कहा अम्मा जब शेर ने आप पे हमला किया तो आपने एक विर्द पढ़ा, या मज़हर अल-अजाइब अदरिकनी। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हाँ ऐसा ही हुआ। कहा अम्मा फिर क्या हुआ? अब अली बयान कर रहे हैं। फिर अम्मा फिर एक शेर आया और आकर एक घुड़सवार आया, उसने शेर के 2 टुकड़े कर दिए। वो शेर आया, उस शेर के वो घुड़सवार आया, उसने शेर के 2 टुकड़े किए और फिर वो जब जाने लगा तो आपने उसे कहा ठहर जाओ, हम खानदाने बनी हाशिम से हैं, हम किसी का एहसान नहीं रखते। आपने अपने गले का याकूत का हार उतार के उसको दिया कि हमारे खानदान की शराफत ये है कि हम किसी का एहसान नहीं रखते, ये लो हमारी तरफ से हदिया कबूल करो। कहा हाँ ऐसा ही हुआ था। कहा अम्मा क्या पहचान लेंगी? एक मर्तबा अली ने अपने जेब में हाथ डाला। कहा अम्मा पहचान लेंगी क्या? यही मालूम ये हुआ कि अली उस जात का नाम है जो कभी आदम की मदद करता है, कभी याकूब की मदद करता है, कभी ईसा की मदद करता है, कभी अपनी माँ की मदद करता है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिन जहाँ होते हैं तो वहाँ शैतान भी होता है। क्यों? क्योंकि मोमिन है, बहकाएगा कैसे? जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ शैतान नहीं जाता। अब देखें नाइट क्लब शैतान नहीं जाता, बार में शैतान नहीं जाता, सिनेमा हॉल नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि वहाँ तो पहले से मौजूद है। वो कहाँ जाएगा? जहाँ मोमिन है उनको बहकाने की कोशिश। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। यह मालूम ये हुआ अज़ीज़ान मोहतरम कि वो आप देखें, आप सुनते रहते हैं कि आदम को बहकाया, वो अलग बात है तरके औला था, लेकिन हर पैगंबर को बहकाया। यानी मालूम ये हुआ कि पैगंबर के घर में भी गया, पैगंबर के घर में भी गया। लेकिन जब शैतान को अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाला तो क्या कहा? परवरदिगार सबको बहकाऊंगा, तेरे हर नुमाइंदे को बहकाऊंगा। और उसने बहकाया, आदम को बहकाया, तमाम पैगंबर को बहकाया। लेकिन कहा परवरदिगार कुछ हस्तियां हैं कि इनको मैं बहका ही नहीं सकता। वाह वाह, इनको बहकाना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनके दर पे जा ही नहीं सकता, इन्हें बहका ही नहीं सकता। पैगंबर के घर में भी शैतान गया। मैं मिसाल पेश कर दूं कुरान से,
जब जनाब इब्राहिम ने ख्वाब देखा और अपने इस्माइल को लेकर चले ज़िबह करने के लिए, तो शैतान आया। अच्छा, बच्चों के लिए अर्ज कर दूं कि शैतान जब बहकाने आता है तो कोई अपनी शक्ल में नहीं आता। अपनी शक्ल में आएगा तो डर जाएगा इंसान, समझ जाएगी कौन है, वो चेहरा बदल के आता। अब जब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर चले तो अब सारा को, हाजरा को बहकाने के लिए अब शैतान देखिए कैसे आया, अबा पहन कर आया, कबा पहन कर आया, तस्बीह पढ़ता हुआ आया, असा लेकर आया, आधे ही बहकाने की कोशिश की। ऐ बीबी हाजरा, आपके बेटे इस्माइल को इब्राहिम ज़िब्ह करने ले गए हैं अपनी दूसरी बीवी सारा के कहने पर। देखिए शैतान किस तरह से मोमिनीन में, रिश्तेदारों में किस तरह से इख्तलाफ बर्पा करता है, किस तरह से आग लगाता है, किस तरह से फितना पैदा करता है। ऐ इब्राहिम, ऐ हाजरा, इब्राहिम आपके बेटे इस्माइल को ज़िब्ह करने ले गए हैं अपनी दूसरी बीवी सारा के कहने पर। फितना बर्पा किया। तो चूंकि माँ थी, माँ का दिल रखती थी, एक मर्तबा बहक गई। कहा फिर मैं क्या करूं, फिर मैं क्या करूं। तो अब शैतान अंदर ही अंदर मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहता अब मुट्ठी में आई है, अब कब्जे में आई है। अब शैतान ने भड़क के कहा बीबी अरे करना क्या है, फला मकाम फौरन बाहर निकलो, फला मकाम पर, फला पहाड़ पर पहुंचो, जाओ जाकर इस्माइल को बचा लो। अब जैसे ही शैतान ने ये कहा, बीबी ने कहा, बीबी की जबान से एक कलमा, एक कलाम नाजिल हुआ, ला हौला वला कुव्वता। अब जैसे ही ये जुमला कहा, शैतान की आबा में, कबा में, तस्बीह में, अमामे में, असा में लर्जा तारी हुआ। वो चीखता हुआ भागा, भागते भागते वो ये पूछ गया, ए बीबी मैं तो अबा पहन कर आया था, मैं तो अबा पहन कर आया था, मैं तो असा लेकर आया था, तस्बीह पढ़ता हुआ आया था, आपने मुझे कैसे पहचाना, मैं तो शैतान हूँ, आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं यूं शैतान हूँ। तो बीबी ने कहा कि जब तू आया तो मैंने तुझे नहीं पहचाना, जब तूने इख्तलाफ बर्पा किया मेरे बच्चों के दरमियान, इस्माइल और इसहाक के दरमियान, जब इख्तलाफ पैदा किया मैंने तुझे नहीं पहचाना। लेकिन जब तूने ये कहा कि बीबी करना क्या है, फौरन बाहर निकलो, तो मैं फौरन समझ गई कि जो नबी की बीवी को बाहर निकलने का मशवरा दे वो शैतान हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी की बीवी को बाहर निकलने का मशवरा दे वो इब्लीस होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मोमिन के पास बहुत बड़ी ताकत है। और जब इब्राहिम मकाम पर पहुँचे, इस्माइल को जब ये करने लगे, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इमामत का मनसब क्या कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब इब्राहिम कामयाब हो गए उसमें, जब इब्राहिम कामयाब हो गए तो फिर क्या हुआ, बस मजलिस तमाम है, सलवात पढ़े मोहम्मद। मोहतरम, फिर क्या हुआ, अल्लाह ने कहा, खुदा ने कहा, ऐ इब्राहिम चूंकि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, हमने तुम्हारा इम्तिहान माल से लिया, औलाद से लिया, तीनों तरह से तुम्हारा जान से लिया, माल से लिया, औलाद से लिया, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं। तो इब्राहिम ने चूंकि मोमिन थे, उन्होंने क्या किया, सजदा किया, सजदा करने के बाद दुआ की, परवरदिगार क्या इस इमामत का ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में भी जाएगा, क्या मेरी नस्लों में भी जाएगा। आवाज कुदरत आई, हाँ इब्राहिम तुम्हारी ही नस्लों में जाएगा, लेकिन जो जालिम होंगे वो इमाम नहीं हो सकते, वो इमाम नहीं हो सकते। अब समझ में आया कि जब इमाम अली के गर्दन में जब रस्सी बांधी गई
तो सलमान खामोश थे, मुस्कुरा रहे थे। अबू जर तड़प गए, कहा है अबू सलमान तुम मुस्कुरा रहे हो, मौलाए कायनात के गले में रस्सी है, तुम मुस्कुरा रहे हो? कहा हाँ, मुझे इस आयत की दलील मिल गई कि जो जालिम होंगे इमाम नहीं हो सकते। ये दोनों जालिम है, मजलूम ये है, मजलूम इमाम है, जालिम इमाम नहीं है। सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 मोहतरम, मोमिन हमेशा चालाक होता है, मोमिन हमेशा चालाक होता है, मोमिन बेवकूफ नहीं हुआ करता। मोमिन हद से अच्छा, इसमें भी क्वालिटीज है, इसमें भी फर्क है। देखिए, हद से ज्यादा जब कोई चालाकी करता है तो फिर उसे क्या कहते हैं? ये मक्कारी कर रहे हैं। ये हद से ज्यादा अगर कोई नीचे आ जाए तो बेवकूफी है। हद से लोग बेवकूफ कहेंगे कि बेवकूफ है। हद से ज्यादा चालाक हो जाए तो लोग मक्कार कहेंगे। जो दरमियान में है उसे क्या कहेंगे? तो अहले बैत की जो सीरत है, जो अहले बैत ने रास्ता अपनाया, उसको क्या कहा गया? वो उसे सदाकत कही गई, इल्म कहा गया, मोमिनियत कही गई। अज़ीज़ान मोहतरम, बस मजलिस तमाम है। इमाम फरमाते हैं कि मोमिन चालाक होता है, मोमिन बेवकूफ नहीं होता। और उसमें से आज की मजलिस का तोहफा बच्चों के लिए, अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम फरमाते हैं कि वो शख्स जो मोमिन है उसके 2 दिन बराबर नहीं हो सकते। अगर किसी के 2 दिन एक जैसे हो, वो मोमिन नहीं है। कल भी 100 रुपया कमाया, आज भी 100 रुपया कमाया, फर्क क्या? जिसके 2 दिन एक जैसे हो वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन क्या करता है? ऊपर की तरफ जाता है, अपने बिहेवियर में, अपने हर कैरेक्टर में, अपने अखलाक में इंक्रीज यानी डेवलप होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब एक चीज ये है कि जब मोमिन से अल्लाह कोई चीज छीन लेता है तो उसके एवज में अल्लाह 70 नेकियां और 70 दरवाजे खोल देता है। आप जानते हैं अज़ीज़ान मोहतरम, एक इमाम के चाहने वाले जो मोमिन था, बस यहां से रखते मसाइल, मोमिन था, उसको उस जमाने के एक जालिम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके जब लाया गया तो उससे कहा गया, लोगों ने कहा कि इसे हमने अली के इश्क में गिरफ्तार किया। जब हाकिम ने देखा, कहा अबू बसीर तुम हो? कहा हाँ मैं हूं। तो जालिम ने अबू बसीर का मजाक उड़ाया, कहा अबू बसीर, तुम्हारा मौला अमीरुल मोमिनीन तो ये कहता है कि अल्लाह एक नेकियां जब सल्ब कर लेता है, छीन लेता है, उसके एवज में 70 नेकियां अता करता है। तुम्हारी आंखें अल्लाह ने छीन ली, तुम्हें कौन सी नेमतें अता की? देखिए, मोमिन हमेशा चालाक होता है। अब मोमिन थे, कहा ऐ हाकिम, अब इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि तुझ जैसा नजीस मेरे सामने बैठा है, मैं तुझे देख नहीं सकता। तुझ जैसा खलीज नजीस पलीद मेरे सामने है, मैं तुझे देख ना सकूं। कहा कि अली के साथ तेरी आंखें शहीद हो गईं, देख अली ने तुझे तन्हा छोड़ दिया। तो अब अबू बसीर ने कहा कि नहीं, अली ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, मैंने अली को तन्हा छोड़ दिया। मेरा मौला मस्जिद कूफा में शहीद हो गया, मैं जिंदा रह गया, मैंने अली को तन्हा छोड़ा। ईज़ान मोहतरम, आज एक मोमिना की मजलिस है अज़ीज़ान मोहतरम, जिनका अखलाक किरदार खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके तमाम नेक अमाल को कबूल फरमाए, उनकी कब्र में आराम व सुकून अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, माँ का चला जाना अज़ीज़ान मोहतरम बहुत क़यामत है, बहुत क़यामत है। अज़ीज़ान मोहतरम, पैगंबर के जाने के बाद वो
फातिमा, जो जिस फातिमा का एहतराम में पैगंबर खड़े हो जाया करते थे, जिस फातिमा के दर पर आकर पैगंबर सलाम करते थे, या अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुवा, उस फातिमा के दरवाजे पर लकड़ियां लाई गई, उनके दर को जलाया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, जब दर को जला दिया और फातिमा अज़ीज़ान मोहतरम दरो दीवार के दरमियान आ गईं, और जब अली को ख़बर हुई और वसीयतें करना शुरू की, तो एक मर्तबा अली से फातिमा कहती हैं, ऐ अली, दुश्मनों का मकसद मेरा घर जलाना नहीं था, दुश्मनों का मकसद फातिमा को जलाना था, दुश्मन मुझे जलाना चाहे थे। इज़ान मोहतरम, बिलाल हबशी जो पैगंबर की वफ़ात के बाद चले गए थे, मक्के को छोड़ दिया था, एक शब बिलाल ने ख्वाब में देखा कि पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं। कहा, ए बिलाल, क्या तुमने भी मेरे अहले बैत को तन्हा छोड़ दिया? तुमने भी मेरे अहले बैत को तन्हा छोड़ दिया? बिलाल कहते, मौला, मैंने तन्हा नहीं छोड़ा, मैं अहले बैत की तौहीन बर्दाश्त न कर सका, इसलिए अफ्रीका आ गया। इज़ान मोहतरम, हुक्म हुआ कि मदीने जाओ, मेरी बेटी की हैवाल पूर्ति करो। जब बिलाल मदीने आए तो मदीने में शोर हुआ, बिलाल आए हैं। इज़ान मोहतरम, हसनैन पहुंचे, बिलाल को दर पे लेके आए। एक मर्तबा बिलाल दरवाजे पे आए, पैगंबर की 18 साल की ज़ईफ़ा बेटी, जो पैगंबर के बाद ज़ईफ़ हो गई, वो बेटी अज़ीज़ान मोहतरम, वो बेटी बिलाल से कहती है, बिलाल, चचा बिलाल, पैगंबर की बेटी तुमसे चाहती है कि तुम अजान कह दो, वक्त अजान है, तुम अजान दे दो। कहा, बीबी, मेरा दिल तो नहीं है, चूंकि आपका हुक्म है तो मैं अजान देता हूँ। अब अजान दिया, अल्लाहु अकबर, बीबी ने अल्लाहु अकबर कहा, फिर उसके बाद के कलमात बीबी ने अदा किए। अब जैसे ही बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब जब पैगंबर का नाम आया, अरे बीबी ने अपने सर से रदा को उतार दिया। कहे, बाबा, अरे आपके बाद मुझ पे इतने जुल्म हुए कि मेरे बाल सफेद हो गए। ए बाबा, आपके बाद फातिमा के दर पर लकड़ियां लाई गई, फातिमा को तमाचा मारा गया। ए बाबा, फातिमा मजबूर है। इन्ना लिल्लाहि परवरदिगार, हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार, इस मजलिस में आए हुए तमाम हजरात के हाथों पर अपनी रहमतें, बरकतें, शराफतें, करामतें, इनायतें, फजीलतें नाजिल फरमा। परवरदिगार, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को परवरदिगार, अमेरिका, इसराइल, आले सऊद, आले खलीफा को जलील व रुस्वा फरमा। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। परचम कुफ्र व निफाक को सरनगू फरमा। परवरदिगार, हमारे वालिदैन का साया हम पर कायम व दायम फरमा। परवरदिगार, दुआओं में बेहतरीन दुआ अव्वल व आखिर ये दुआ है कि हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। क़ल्बे हज़रत को हमसे राज़ी व खुशनूस फरमा। आप मोमिनीन से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर वाजिदा तबस्सुम बिन्ते अली हम्माद की रूह को